Assalamualaikum. This is your mathematics teacher, Sir Faizan Walak. I hope so you all are doing good at your home and enjoyed your education. As we all know that due to coronavirus, school physical classes has been suspended. So that's why we have switched to online teaching system. In today's class, we are going to discuss exercise 1.2 of chapter 1 sets. As we have already completed question number 1 till 8 of exercise 1.2 and exercise 1.1 as well. So in today's class we are going to start our questions from question number 9 and we'll try to complete it till question number 16, and also we'll try to draw main diagrams in these questions. So let's start. So as you can see in your screen, it's chapter 1 sets exercise 1.2. In question number 9 till question number 16 there is a single statement which is written on the screen. You people can able to see this, which is in a set builder form. So first of all, to solve question number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, we have to first of all convert these sets which are in set builder form in a tabular form. हमें इन सेट बिल्डर फॉर्म्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेट ए को भी, सेट बी को भी, सेट यूनिवर्सल को भी, सो डैट वी आर एबल टू सॉल्व दीज ऑल क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट ए को कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में. इन सेट ए इज रिटन एज x such that of x is a positive even integer less than 10. जो x है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है और वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स इवन नंबर्स भी हैं और वो तमाम इवन नंबर्स 10 से छोटे हैं. सो यू कैन सी कि सेट ए के अंदर जो टेबुलर फॉर्म है उसमें रिटन है 2, 4, 6, 8. These all are positive, these all are even and less than 10. So now move towards the second set builder form, set B. X such that of x is positive odd integer less than 10. In set A we need positive integers, even positive integers. Now we need odd positive integers less than 10. So we know odd numbers are those numbers which are unable to divide by 2. So here 1, 3, 5, 7, 9 are those numbers which are unable to divide by 3 or divisible by 2, sorry. So now x such that of x is a positive integer less than 10. x such that of x पॉजिटिव इंटीजर है लेस दैन 10. इसमें इवन और ऑड मेंशन नहीं है, तो इट्स मीन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन जो 10 है वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगे. और आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट भी है क्योंकि उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी के मौजूद हैं. नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी आसान है. वी हैव प्रैक्टिस्ड इन आवर फिजिकल क्लासेस. यूनिवर्सल का यूनियन का फंक्शन, इंटरसेक्शन का फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट का, सिमेट्रिकल डिफरेंस का, सब्ट्रैक्शन का. सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर जो एक टास्क था, हमारा मेन टास्क सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में करना, और दूसरा टास्क है कि इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना, सॉल्व करना और फिर इन क्वेश्चंस की वेन डायग्राम को ड्रॉ करना. सो वी विल ट्राई टू solve question number 9 and also try to draw the Venn diagram of question number 9, because question number 16 के अंदर यही रिक्वायरमेंट है कि हमें तमाम क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 9 टिल क्वेश्चन नंबर 15 वेन डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. सो हम ये करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और मीनवाइल हम उसी क्वेश्चंस के साथ उसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा.
सो क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है और बी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। सो वी हैव अ सेट ए बट वी डिडंट हैव set of B complement. So first of all we will find B complement. As we all know that B complement means universal set minus B. So यहाँ यूनिवर्सल सेट के नीचे यूनिवर्सल सेट लिख दिया, सिंबल माइनस की पुट की, और B सेट के नीचे B सेट लिख दिया। एंड जो सेम नंबर्स होते हैं दोनों सेट में उसे कैंसिल आउट कर दिया जाता है, और फर्स्ट सेट इन द फर्स्ट सेट रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट वो आंसर में लिख दिए जाते हैं। So here we got the answer of B complement 2, 4, 6, 8. Now move towards A union B complement, because हमारा क्वेश्चन था A union B complement फाइंड करना, बट वी डिडंट नो द सेट B complement। तो पहले हमने B complement के सेट को फाइंड किया। नाउ वी हैव द सेट B complement, सो वी विल फाइंड A union B complement। सेम हमने दोनों सेट्स को लिखा, सेट A यूनियन का सिंबल पुट किया मिडिल में, एंड बी कॉम्प्लीमेंट का सेट राइट किया लिखा। एंड यू ऑल नो इन यूनियन हम तमाम सेट्स को के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक साथ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों सेट्स सेम ही है। सो इट्स मीन हम एक दफ़ा लिख देंगे आंसर को 2, 4, 6, 8। So we got the answer of A union B complement is 2, 4, 6, 8. Now we have to draw the Venn diagram of this question. Venn diagram is not a difficult task, it's a very easy task if we will know how to draw it a perfect Venn diagram. So first of all, जब भी Venn diagram आएगी we have to draw a rectangle. हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसमें तमाम सेट्स को ड्रॉ कर देना है। तमाम सेट्स कैसे ड्रॉ होंगे? अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं तो हम उस रेक्टेंगल के अंदर 2 सेट्स के लिए 2 सर्कल्स को ड्रॉ कर देंगे, और उन सर्कल में जैसे वी हैव राइट नाउ सेट ए सेट बी, तो आई हैव mentioned set A and elements of set A in one circle, and mentioned set B and elements of set B in other circle. और ये दोनों सर्कल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। एक्चुअली रेक्टेंगुलर बॉक्स मेंशन कर रहा है आपके यूनिवर्सल सेट को, मीन्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी ये सेम है, ए और बी की जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स चेंज है। तो इट्स मीन हमने सेट ए और सेट बी को एक सर्कल में कर दिया, लेकिन दोनों सर्कल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ हमें वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है? हमारा आंसर आया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 2, 4, 6, 8। तो हमें अपने आंसर को मेंशन करना है। हम कैसे करेंगे मेंशन? 1, 3, 5, 6, 7 तो है नहीं, 1, 3, 5, 7, 9 तो है नहीं। सो we will shade all the rectangular box with the circle which have the answer। जैसे आंसर हमारे पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 2, 4, 6, 8, तो हमने सिर्फ उसी पोर्शन को और बाकी पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स को शेड कर दिया, लाइनिंग ड्रॉ कर दिए, और जो सेट B था जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 एलिमेंट्स मौजूद थे उसे हमने अनशेड कर दिया, हमने शेड नहीं किया उसको। सो इट्स मीन कि जो आंसर होता है हमने उस पोर्शन को शेड करना होता है, जो आंसर नहीं आता हमने उस एलिमेंट्स के उस पोर्शन को शेड नहीं करना होता। वी जस्ट हैव टू लेफ्ट इट एज इट इज़, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया था। जब आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक वाइट शीट होती है कॉपी की, सो इट विल शो यू द डिफरेंस। जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, सेम लाइक वाइज यू विल सी द डिफरेंस इन योर कॉपी। सो आई विल रिपीट इट अगेन कि हमें सिर्फ शेडेड पोर्शन को आंसर के पोर्शन को शेड करना है वेन डायग्राम में। वी हैव द आंसर ऑफ 2, 4, 6, 8।
वो आंसर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का था, बट इफ़ यू विल सी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लाई कर रहा है सेट ए में. सो वी जस्ट शेड all the portion of that rectangular box with the circle of set A and left the set B and elements of set B. I hope so you guys have understand how to draw Venn diagram in sets. If you have any question, so you can ask in the comment below and try to do it all this question in your copy, and if you have any previous work remaining, so try to complete it and submit your copy on the given date to the school. Take care of yourself. Allah Hafiz.